everyone. Welcome to our webinar. My name is Aisha Irfan and I'm the head of the Educator Department here at Mental Health Amen Foundation, and I'll be your host for tonight. So let me just tell you guys some things about Mental Health Amen Foundation. It is a mental health platform founded in 2022 by our CEO, Miss Amen Shehzadi. And we have four main departments. The first one is clinical psychology, where we offer psychological services to people who sign up for it by very accomplished clinical psychologists. The second department is the educator department for awareness regarding mental health, through which we conduct webinars and workshops. The third department is the social media department, which is responsible for our social presence online. And then our upcoming and fourth department is the donations department, where we plan to break unaffordability and help those in need. So today's webinar will be led by the talented Miss Sana Munawar. She is a very great psychologist, and her topic is building emotional intelligence. And it holds significant importance as emotional intelligence is crucial for personal and professional success, and it helps people recognize and manage their emotions while empathizing with others and enhances our communication. So, Miss Sana, over to you now. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're all good and enjoying your weekend. Now, let's start our today's session. As you know, the topic is building emotional intelligence. And let's talk about, first of all, we are going to make responses. I want your input in that. And what we are going to do is you will define me emotional intelligence in one word. So I'm going to write down your responses in the slide, and then we will move on to the next our session. Yes, please. You can write down your responses in the chat, or you can also unmute yourself and then tell me verbally. Understanding your emotions as well as other people's emotions. No, I'm saying, what do you understand? How can you define emotional intelligence in your understanding? What is emotional intelligence means in one word? In one word. Oh, okay. Yeah, one word is difficult. Emotion, just understanding. Let's say understanding. Okay, understanding. Good. Next, anyone else? I also want to see your responses in the chat. Managing emotions. Okay. Some of you are also writing in the chat box. I want to see that responses as well. Ability to manage emotions, self-awareness, very nice. Okay, and empathy, awareness, that's good. Okay, so let me write down in the box as well. Empathy, self-awareness. Anyone else want to add something in that? Yeah, some of you were saying something. Okay, one more. Anyone else want to say something about emotional intelligence in your understanding, in your idea? What is that? Management. Management, okay. Management of emotions, management of self, what? What do you think? Management of emotions. So here we are basically starting our session
but I want you all to reflect your past 1 week, and let's think about it. How do you feel about yourself, that how emotionally intelligent you are in your past week? You can say with a yes or no. It is not going to, you have to describe it in the complete one whole paragraph. You just have to say yes or no, and you can show thumbs up or down, and just have to tell that, do you feel that you are emotionally intelligent in your last week? Okay. Anyone else? You can show hands up or hands down, or thumbs up or thumbs down, or you can say yes or no in your chat box. Okay. I would say that Yes. someone was angry at me, but Mhm. I kept my emotions aside and I tried to understand the reason why they're angry at me. So that's how I dealt with that person, and everything was okay. Okay, that's great. And the next question is also is going to be answered with the yes or no, or with a thumbs up or thumbs down. Do you believe you are emotionally intelligent person as a whole, as a personality? You think that you are emotionally intelligent person? Yes and no. Okay. So most of the people are saying yes. So it's a very good insight I'm getting from my participants, that they feel that they are emotionally intelligent. So it will be great to look forward to all of you. Okay. Have you ever taken deliberate steps to improve your emotional intelligence? Okay. There are some responses with no as well. Okay. I hope after this session, you will definitely get some of the strategies, or you can say some of the ways by which you can improve and build your emotional intelligence. Okay. So the third question is, have you ever taken deliberate steps? Okay. There are some responses like yes. Okay. Kashyap Zahra is also saying yes. And someone else, Aisha, is also saying yes. Okay. So let's move on to our next slide. So it's just you can say just a small reflect or a small survey where we are getting about ourselves and about others as well. And I'm also getting get to know about all of you, that how much uh, emotionally intelligent you are in your life, and how much you can say effort you are putting in your life to become a emotionally intelligent person. Okay, let's move on to the next slide here. Okay, so now we are going to look at that mm, what are the next steps we can take. Okay, just give me a second. I'm not able to move my slides. Okay, so the next slide is over here. Is, as you all can see, what we will learn today. Everyone can see the slide? Yes, we can. Okay, okay. So over here, as you know, that in this session, we are going to explore the definition and the key components of emotional intelligence. And we are also going to learn some effective strategies to improve and to enhance our emotional intelligence. Because emotional intelligence is not something which we are come in this world and it's by born. It's not something we can improve, enhance, we can build that with our effort. It's not something which we get by nature. Okay. So the next is discover practical techniques to nurture emotional intelligence in children. So as one of our very important, you can say,
people which we are working on all the time as a family, as a teachers, and as a community. We are working always on our children, on our next generation. So it is very important to give them the environment, give them the upbringing where they are nurturing their emotional intelligence from the early years. Okay, the next, which is very important, is that we are going to understand how to build emotional intelligence while managing disorder and trauma. And while I was making this slide and making, you can going through all this, it is very important for me to also capture the people, like being a psychologist, and all of you are here having a background of psychology. So some of you are not, but still all of we are having to get to know from, as a person, as a community, we know that there are some people who are in stress and they are managing their problems. So it is very important. Miss Sana, can you wait? Yeah, sure. Everyone whose mics are unmuted, please mute them. Yeah. Please go on, Miss Sana. Okay. So this is the need of our this is the need of the hour to also get understanding that how can we give them the idea to improve their emotional intelligence while they are going through any trauma or any you can say physical or emotional or mental disorder. So let's move on to the next slide. Let's go through a quick, you can say, understanding of what is the emotional intelligence as a definition. So here I have given 3 names, as you can see on my slide, that Michael Beltock is the first person who has given, who used this word, this terminology, emotional intelligence, in his research paper in 1964. And later, Selway and Mayer, 1990, he introduced the emotional intelligence scientifically in his research, and he was these 2 people also give some definition. We will later look into that too. And then Daniel Goleman, he was a very you can he's a profound psychologist, and he has his work is like being known to all the people who knows his history, that he has given the he has written a book on emotional intelligence also, and it was like a bestseller book. And he has brought EI into mainstream awareness, and it linked to leadership and workplace success also. So let's go through his definition. What is Daniel Goleman's understanding of emotional intelligence? So he said that emotional intelligence is the ability to recognize, understand, manage, and influence one's own emotions and the emotions of others to enhance relationship, decision-making, and overall well-being. We will later also get to know what are the components he has introduced. And over there, you will also get to know what are the main these points which he has explained in his definition as well. That later, Selway and Mayer definition is also there. The ability to perceive emotions, integrate emotions to facilitate thoughts, understand emotions, and regulate emotions to promote personal growth. So what I will get from both of these definition, जब मैंने इन दोनों definitions से जब मैं गुजरी, तो मुझे there is a difference in that. आप भी इस चीज को फील करेंगे कि जो डैनियल गोलमैन है, उसने बेसिकली सेल्फ की और फिर उसके बाद उसने जो है वो दूसरों की जो है वो बात की है इमोशंस की, कि उनके बारे में, और फिर उसने डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल वेलबींग की बात की है। जबकि सॉल्वे एंड मेयर्स ने जो बात की है उसमें उसने कहा है कि एबिलिटी टू परसीव इमोशंस और फिर उसके बाद उसको फैसिलिटेट करना, उनको अंडरस्टैंड करना और फिर उनको रेगुलेट, यानी इमोशनल रेगुलेशन की बात की है, जो कि सेल्फ के अंदर आती है। लाइक आप अपने अंदर ही बात कर रहे हैं कि आपके अंदर जो कुछ चल रहा है, आपके इमोशंस को चल रहा है, वो आप उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। So let's go for the next. What are the components of emotional intelligence, which given by mainly by Daniel Goleman? And here you can see this is an image. This is an infographic over here of emotional intelligence components. And I really like that. And I hope you also get a very good insight of components by later.
Here you can see empathy, motivation, self-regulation, social skills, and self-awareness. So these are basically 5 areas, 5 components which we can say जो emotional intelligence के अंदर आते हैं. हम इनको डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन व्हाट आई थिंक कि मैं आप सबसे भी चाहूंगी कि आप लोग अपनी भी, जाहिर बात है ये ऐसे वर्ड्स नहीं हैं जो मतलब कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हों जो हमें पता ना हो. ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, यूज कर रहे हैं. तो इस सब चीज़ों का अगर एक कह लें कि सेट ऑफ जो है वो एक इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद हो तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. So, but why we feel that we are not having that? हम तो एक motivated person हैं, हम तो अपने emotion को regulate कर रहे हैं, we are aware of ourselves. So, what are the things which we have to improve in that? हम इनको भी देखेंगे. And what are the social skills which are required in emotional intelligence? और वो ऐसे कौन से बड़े चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं. So, let's go for that. सेल्फ अवेयरनेस में जो यहाँ पर बात आ रही है वो ये आ रही है कि रिकग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड देयर इम्पैक्ट एंड डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने 2 मेन चीज़ों की बात की है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें. when I was going through self awareness, तो मेरे जहन में मैंने कुछ images वगैरह भी अपनी slides के अंदर डाल रही थी, and I was trying to find some images, good images for related to self awareness, and one very you can say cute thing happened in my mind. You can say कि मुझे feel हुआ कि self awareness is not just about getting to know yourself, it is also about accepting yourself and loving yourself. So self-awareness is not just that you are knowing कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा emotion है आपके अंदर इस वक्त, but you also have to accept it, and you also be kind to yourself, love yourself, just give your space. मतलब अपने आप को time दे, अपने emotions को time दे. So don't be hard on yourself. It is also the part of self-awareness. And at times हमें अपने emotions का पता होता है, but we are being so overcritical with ourselves कि हम अपना self confidence खुद ही shatter कर रहे होते हैं. Like we are being a best critic to ourselves, and which is not good, I think. कि ये ही चीज़ हमारे लेटर हमारे सेल्फ रेगुलेशन को, हमारे इमोशंस की रेगुलेशन को बहुत ख़राब करती है. जब हम पहले स्टेप पर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को ही ख़राब करने के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को शैटर कर देते हैं, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज आवर इमोशंस. Later is self-regulation. I think self-regulation, it is also about managing emotions or managing your like regulating your emotions in a healthy way. अब यहाँ पर बात आती है कि practicing self-control and adaptability. Like at times we are aware of our emotions, but the problem is that let's suppose हमें पता है कि we feel anxious, we feel aggressive at times, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, and we are giving that control to others कि वो ऐसा ना करें तो हमें ऐसा महसूस नहीं होगा और हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे और हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी तो हम ठीक हो जाएंगे. So it is about our giving our control to others. तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो अपने पास अपने इमोशंस का कंट्रोल रखता है. He is not giving his control to the environment, to the people. So adaptability की जहाँ तक बात आती है तो उसमें मैं यही कहूँगी कि adaptability is about when you are in different environment and you are in different people around you, some of them which are very close and some are not. तो लेकिन आप उसके according अपने आप को, अपने इमोशंस को और अपने सेल्फ को मैनेज करना और उसके साथ एडजस्ट होना सीख लें. दैट इज अबाउट अडेप्टेबिलिटी. लेट्स टॉक अबाउट द मोटिवेशन, बीइंग ड्रिवन बाय इंटरनल गोल्स एंड वैल्यूज. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट over here कि कोई personal goals हों. Like when we are talking about there is a description, there are some I think some mics are on. Can you please Arfa, please mute your mic.
Okay, so over here, we are talking about the motivation, being driven by internal goals and values, staying optimistic despite challenges. So, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि हम लोग ओवर क्रिटिकल जब हो रहे होते हैं, so when we are going through some kind of goals in our life, हमारे कोई कह लें कि objectives हैं जिनके लिए हम we are being feeling that we are in a challenging situation. तो उस टाइम पर जो आपकी एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है, ऑप्टिमिस्टिक सोच है, वो उसको रहना और उसको मेंटेन करना, दैट इज आल्सो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. Okay, let's talk about the last two components, empathy and social skills. Empathy के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हुए हैं. I think it's like a very easy to understand. All of you know about empathy क्या होती है. लेकिन now we are as we are talking about the perspective of emotional intelligence, so I will add on that कि empathy जैसे हम ये लेते हैं कि empathy में हम अपने दूसरों की emotions को understand कर रहे हैं, but it's not about that we are understanding it just के हाँ ठीक है वो ऐसा सोच रहा है और वो ऐसा feel कर रहा होगा. We also have to be kind. We also have to be make feel a little bit more humble in that. Because at times हमें ये पता तो होता है कि दूसरे की सिचुएशन क्या है और हम उसकी चीज़ का अंदाज़ा भी रखते हैं, बट वी आर बीइंग हार्ड टू देम एंड टू आवरसेल्व्स कि वी आर नॉट गिविंग देम द स्पेस. जैसे कभी कभार एक माँ जो है वो बच्चे के बारे में जानती है कि मेरा बच्चा जो है वो शरारत तो करेगा, लेकिन वो उसके पर्सपेक्टिव पर जाकर नहीं सोचती है और उसको ये चीज बुरी लग रही होती है कि वो क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो इफ वी आर गोइंग जस्ट लाइक कि हम उस बच्चे के लेवल पर नहीं जाते और फिर हमें उसकी वो शरारत बुरी भी लग रही होती है, ऑल्दो कि वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ उसकी सोच में ये सारी उसकी एज में ये चीजें आएंगी और वो करेगा ये चीज, बट लेटर व्हाट वी आर नॉट डूइंग इज कि हम उसकी वजह से अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे होते बल्कि खराब कर रहे होते हैं. Later, what we are talking about is social skills, building meaningful connection, managing conflict effectively. So I think this is what it is very important. This is like the main core element of our emotional intelligence कि हमारे लाइफ के अंदर जो हमारे connections हैं, हमारे relationships हैं, वो strong हो emotional intelligence से. When I was going through the video of Daniel Goleman, what he was saying in that in whatever kind of parent or sibling or friends and leaders, what we want in them, that they are emotionally intelligent. हम अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग जिनके साथ हम लोग कह लें कि इंटरेक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वी वांट देम कि वो एम्पैथेटिक हों, दे आर taking care of us, and they can motivate us, they are emotionally intelligent. So but at self हम कभी कभार ये चीज neglect कर रहे होते हैं या भूल रहे होते हैं कि we are also on the same role. We are sibling to someone, we are parent to someone, we are teacher to someone, we are you can say caregiver for someone, and we are also leader at some place. So we also have to be emotionally intelligent so that we can be the one who is leading the emotionally intelligent environment. Miss So Sana, we are not Ji. interrupt you. I'm so sorry, but there are only 2 minutes left in this meeting, so everyone has Okay. share a new link soon, and then you guys can rejoin. Okay. So let's move on to the examples of emotional intelligence in action. Self awareness की एक मिसाल यहाँ पर मैंने वैसे अपनी जो बातचीत की है उसके अंदर भी हमने कुछ इस तरह की बातें करनी है, but I'm just going to read from here as well so that we will get some new examples of self awareness. A manager noticed they are feeling stressed before a team meeting. Instead of snapping at their team, they take a few deep breaths and remind themselves of their goals for the discussion. So self awareness के अंदर ये चीज आती है कि but when you are aware of that, you are going to be a little bit stressed on someone, but you still have to
go for the self control as well. और उसी के अंदर अगला स्टेप आता है सेल्फ रेगुलेशन का. When you are having a heated argument, a parent avoid shouting instead of calmly explain their child anything which they want to tell them. Then example of a motivation is there कि an athlete faces repeated failures but staying committed to their training, committed to their sports. So हमारी लाइफ में भी इसी तरह मुख्तलिफ मौके ऐसे आते हैं where we are facing failures, we are facing some kind of you can say rejections, and we have to repeatedly doing the same thing, which is sometimes it is very monotonous as well. But what makes us motivated, that is also the part of our being intelligent toward our emotions. So jab hum let's talk about the other example as well. How can we be empathetic in our daily life? Just like as a doctor, notice a patient is visibly strategies to improve emotional intelligence. Before that, we have talked about the components. Now we are moving to the prime and you can say core objective of our today's session, and that is how to improve emotional intelligence. So as we have talked about the first component, it is about self-awareness. Same is going to be in our strategies, that we need self-awareness of ourselves. And how can we do that? Let's talk about it. So as you can see on the slide, there are some three main things which they have we are going to talk about in that, and that is mindfulness practices, journaling, and reflection. Some of you are aware of these concepts, but still I think we are going to talk about these in the perspective of self-awareness right now and emotional intelligence. So I will give a brief understanding of that. Over here, just as you know, that mindfulness is about being, you can say, conscious about your daily practices, about your daily chores, and you are like being showing gratitude and also being, you can say, positive and optimistic about your daily life routine. Like you are giving attention to the daily life chores. And you're doing it in an optimistic and a positive way, that you are engaging in that and giving yourself a good understanding and insight about it. Just like I will give you an example, कि जब हम कुछ खा रहे हैं, तो we know that ये हमारे पास बहुत सारे steps से गुजर कर आया है. Like जब हम डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना खाना रखते हैं, तो उससे पहले हमने कितने सारी प्रिपरेशंस की होती हैं और उसके बाद वो खाना हम तक आता है, राइट? लेकिन उससे भी बहुत पहले हमारे लिए वो खाना पहुंचा है, और वो हमारे कह लें कि वो रिस्क जो हमारी किस्मत में आया है, वो बहुत सारे पीछे बहुत सारे स्टेप से गुजर कर आया है. और उन स्टेप को जब हम वी जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, it gives us a very good vibe and it gives us a very good understanding. और यही चीज जब हम अपनी रूटीन लाइफ में कई और चीजों के लिए भी करते हैं, लेट्स सपोज गेटिंग अ गुड ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस, हम बीमार हुए और हमें कोई अच्छा इलाज मिल गया, या हमें कोई अच्छी किताब या कोई अच्छी चीज मिल गई, हमें कोई अपनी जरूरत से रिलेटेड कोई सामान या घर की कोई चीज चाहिए और वो हमारी जिंदगी में मौजूद है. So this is like about mindfulness practices which we are going to do in our daily life, which we are giving us understanding that how much we are self-aware about ourselves, कि हमारे पास क्या क्या है. Because at times we are being so pessimistic about ourselves कि हमारे पास अल्लाह ताला की क्या क्या नेमतें हैं, right? जिसकी वजह से हम at times बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. Next step is journaling. Regularly write about your feelings and experiences to identify the emotional triggers. Emotional triggers जो हैं वो basically ये होते हैं कि हमारे at times कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, और कोई वाकया, कोई चीज, कोई एक्सपीरियंस, कोई कह लें कि ग्रीवियंसेस, कोई खलिश, कोई ऐसी पुरानी चीज जो हमारे दिमाग में होती है, और अगर वो दोबारा से हमारे सामने आती है तो वी गेट इमोशनली ट्रिगर टू दैट.
हमारे इमोशंस उससे एकदम जो है वो कह लें कि हम गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और दूसरे बंदे के लिए नहीं होती है वो बात, बड़ी हमारे लिए होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इमोशनल ट्रिगर्स कि हमारे जहन में क्या ऐसी चीजें चल रही हैं। वी आर गोइंग टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। वो अनकॉन्शियस माइंड की जो कह लें कि ट्रिगर्स हैं वो तभी पता चलते हैं जब हम वी नोट डाउन आवर इमोशंस ऑन अ पेपर। सो राइटिंग डाउन, making a diary of yourself for journaling, and giving time to yourself in the night, whenever you are free, whenever you feel that you are in a mood of writing something about yourself, it is a very good practice. और हम बहुत सारी जो है वो ट्रीटमेंट्स में, थेरेपीज में भी जर्नलिंग को यूज करते हैं, एंड दिस इज लाइक अ वेरी गुड प्रैक्टिस, वट एवर टाइम यू गेट यू हैव टू डू इट. The next is reflection. Take time to assess your emotional responses in various situations. अच्छा, एक चीज ये आती है कि एट टाइम्स हम ये तो याद रखते हैं कि किसी और ने हमारे साथ क्या बोला या कहा, लेकिन हम अपने अल्फाज और अपने जुमलों को भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या कहा था, या हमारी बात का दूसरे की शख्सियत के ऊपर क्या असर हुआ होगा, या उसको क्या महसूस हुआ होगा. सो व्हाट वी कैन डू इज सेल्फ रिफ्लेक्ट आवरसेल्फ whenever something happened in our life. So what we can do is कि हम उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को एनालाइज जरूर करें, राइट, और अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी जरूर याद रखें. सो इट विल ऑल्सो गिव अस अ गुड यू कैन से सेल्फ इंसाइट कि हमारे अपने बारे में भी, और ये कि हम किस तरह से हमारे व्हाट आर द साइकिल ऑफ आवर थिंकिंग, व्हाट आर द थिंकिंग पैटर्न्स विच वी आर फॉलोइंग. तो ये भी हमें हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पैथी. As you can see over here, in this image which I have given in the slide, there are two heads and there is arrows going in both minds. So what we basically, it is depicting that empathy is about understanding about others, right? Understanding their emotion, understanding their situation. And it can only be happen when we are going to listen actively listening others. Being a good listener is very important in our life. हम बोलते अच्छा है लेकिन हम सुन नहीं पाते ना दूसरों को. तब भी हमारे लिए एट टाइम्स हमारे अंदर पेशेंस नहीं, दूसरे की बातों को ज्यादा देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करें. To improve your empathy, to improve your emotional intelligence, it is very important कि आप दूसरों को सुने. जब आप दूसरों को सुनते हैं, you are able to be like come on their level. आप उनके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छी राय कायम कर पाते हैं. Focus fully on the speaker, acknowledging their emotions without interrupting. And perspective taking. Try to understand situation from others' viewpoint to enhance their emotional understanding. Same, I think it is understandable कि उनके perspective पे जाके उनकी बात को समझे. And also give attention to their body language. कभी कभार कुछ लोग अपनी बात इतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर रहे होते वर्बली, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब देखते हैं, आप उनकी ओवरऑल पोस्टर को देख रहे होते हैं, किस तरह उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उनके शोल्डर कैसे हैं, हाउ दे आर सिटिंग, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा होता है कि राइट नाउ what kind of situation he or she is facing. तो मे बी आपको मेरी इन सारी बातों से लग रहा होगा कि क्या हम सबको हर वक्त साइकोलॉजिस्ट बन जाना है, हमें हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचना है और हमें अपने बारे में अपनी चीज़ों को नहीं फील करना. लाइक जब हम एम्पैथेटिक हो रहे हैं तो साथ में वी आर ऑल्सो गिविंग आवर सेल्फ अ गुड इंटेलिजेंट माइंड विच इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग their situation and themselves. क्योंकि हमने जैसे डेफिनेशन में भी पढ़ा कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज नॉट जस्ट अबाउट योर सेल्फ, इट इज ऑल्सो अबाउट अदर्स, कि वो दूसरों के बारे में भी समझ पाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रेटजी एंड इट इज अबाउट फीडबैक कल्चर. When I was going through this point, I feel that I want all of you कि आप भी इसमें participate जरूर करें और मुझे बताएं. What do you think? That do we have to take others' point of view about our emotions? क्या ये इतना आसान होता है कि क्या हम दूसरों की तनकीद या दूसरों के कमेंट बर्दाश्त कर पाते हैं?
अपने लिए, हमारे इमोशनल इंटरेक्शंस के बारे में? क्या इट इज़ वेरी इजली यू कैन से प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम दूसरों से उनकी जो है राय लें अपने बारे में? I just want anyone to add on that or share their feedback about it. हाँ, ऐसा ना फीडबैक कल्चर के हवाले से देखें, अगर हम शुरू से लेकर अब तक देखें तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की राय के हिसाब से ही अपने आप को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं ना। बट वो सही। डिपेंड करता है कि आप वो पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म है या फिर वो जो है वो एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, तो ये जरूर डिपेंड कर रहा होता है। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की कि वो शख्स जो है वो हमारे लिए जो बात कर रहा है, क्या वो पॉजिटिवली कर रहा है, ये हमारे लिए मैटर करता है। सो लाइक इसमें रैपिड बिल्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी शख्स के सामने क्या रिप्यूट है, क्या रैपिड है, हमारे लिए वो मैटर करता है। लेट्स सपोज हमारे पेरेंट हमारे हमारे से कोई बात कहते हैं और कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल हमारे से बहुत सालों बाद मिल रहा है वो भी वही बात कहेगा। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? और अगर हमारे लिए ये चीज़ कंस्ट्रक्टिव तभी होती है जब हम उन लोगों से कोई फीडबैक लेते हैं जिनको हम वैल्यू कर रहे होते हैं या जिनके लिए हम चाह रहे होते हैं कि दे आर गोइंग टू गिव अस आर जो है वो हमें फीलिंग आ रही होती है कि ये हमारे बारे में जानते हैं, राइट? सो जैसे आप व्हाट वी देखो, कई जी मर्तबा ऐसा भी होता है कि अगर हम नॉर्मल नॉर्मल केसेस की बात करते हैं तो बहुत हम्म दफा ऐसा होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आ रहा है तो वो यही शिकायत कर रहा है कि पेरेंट्स की तरफ से ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। अब जैसे मैं कल का ही एक जो है वो अपने कुलीग का आपको केस बताऊं कि उसको हम्म उसके पेरेंट्स ने जो है वो बचपन से ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स कर करके इस लेवल पे वो आ गया है बंदा कि अब हम्म जब उसके हवाले से बात करो, ये बात हमें पता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हम्म जब भी आप उसके हवाले से बात करो तो वो कहता है कि आई एम अ बिग लूजर। जब उससे हम्म उस चीज की वजह पूछी गई तो उसने कहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे ये कहा है कि तुमने हम्म उस तरीके से अपनी लाइफ में परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से तुम्हारे बड़े भाई ने किया है। तो हम्म इट हम्म नेवर डिपेंड्स कि कौन कह रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस में सिर्फ इमोशंस नहीं आ जाते। मैंने मैनेजमेंट इसीलिए कहा था क्योंकि हम्म उसमें फिर सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपको अपने बारे में अच्छे से पता होता है। तो जब हम्म भी कोई सामने वाला आपको फीडबैक दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको ये बात पता होगी कि वो बंदा जो है वो किस जोन में आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि जैसे आपने भी कहा कि कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हमारे लिए, उनकी फीडबैक भी हमारे लिए इतनी कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है। So, what we can do is we have to be surround ourselves towards some of our loved ones और हमारे कुछ करीबी नियर वन ऐसे होने चाहिए जिनकी हम फीडबैक लेकर अपने बारे में जो है ये महसूस करें कि हाँ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आफ्टर दैट, राइट? एंड इट इज नॉट बी लाइक रिजिडिटली हम ये कहें कि वो पेरेंट्स ही होने चाहिए या वो हमारे फ्रेंड्स ही होने चाहिए या वो हमारे कोलीग्स ही होने चाहिए। इट कैन बी एनी वन। मे बी एट टाइम्स हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते लेकिन दे गिव अस अ वेरी गुड फीडबैक, राइट? और वो हमें कुछ देर के लिए मिलते हैं या कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं बट दे गिव अस अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर बेसिकली इन दिस यू कैन से स्ट्रेटजी वी कैन गो फॉर ओपन पर्सन टू पर्सन। हर बंदे के लिए ये डिफरेंट होगा। it is not we cannot confine it toward the family members or friends also in like only कि यही आपको फीडबैक दे सकते हैं। वो शख्स जो आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, यू कैन टेक देयर फीडबैक, राइट? either it be your teacher, your head, your colleague or your parent or your friends, जो आपकी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हीं से ये बात करें। Next, we are going to talk about the emotional regulation. Coping strategies use करना, deep breathing use करना, counting to 10 before reacting,
किसी भी चीज को पॉज देना, मतलब अपने रिएक्शन को एकदम इम्पल्सिव होकर ना करना, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट योर इमोशन। जब भी हमें कोई भी ऐसा इमोशन आ रहा है जिसके अंदर हमें लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू मैनेज आवर इमोशन वेरी वाइजली इन दैट, तो वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। चाहे वो रोना है, सैडनेस है, या वो गुस्सा है, या हमारा किसी और तरह का एंग्जाइटी का इमोशन है, तो वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। जब ये सभी तभी होगा जब हम जर्नलिंग करेंगे, जब हम सेल्फ अवेयर होंगे। अब अगर मुझे अपने बारे में ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी एंशियस होती हूँ, मैं उदास नहीं हो जाती इतनी जल्दी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एकदम किसी चीज को लेकर अपने ऊपर तारी जरूर बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मैं किसी चीज से खौफजदा बहुत जल्दी हो जाती हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज, मोस्टली मैंने अब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ ये सिचुएशंस होती हैं और इनके अंदर मेरे इमोशंस जो हैं वो ज़रूर मुझे मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। तो उस टाइम के लिए आपको अपने इमोशंस को ये एक कह लें कि रेगुलेट करने की एक आदत डालनी है। यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ दैट। यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, यू हैव टू काउंट बिफोर रिएक्टिंग, राइट? The next is pause before responding in emotionally charged situation to consider your reaction. Same is the thing which we have learned in self-awareness कि mindfulness की थिंकिंग जब हम डेवलप कर लेते हैं तो फिर हम अपने रिस्पॉन्सेस में भी वही चीज़ आना शुरू हो जाती है, हमारे रिएक्शंस में भी वैसे ही आना शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज or hobbies that help reduce your stress and improve your emotional control. It is it is different for everyone. I think stress management की coping strategies हर बंदे की मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर जो बात हुई भी है कि आपकी कोई हॉबी हो, आपकी कोई एक्सरसाइज हो, व्हाट आई बिलीव इज जो एक बचपन होता है हमारा, इट इज़ लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, और उसके अंदर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई छोटी मोटी कोई बड़ी कोई हॉबी ज़रूर रही होती है। तो जस्ट रिमेंबर योर चाइल्डहुड, रिकॉल योर सेल्फ कि आप अपने बचपन में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करते थे या करते हैं, और वो चीज़ अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर ऐड ऑन किया करें। चाहे वो डूडलिंग है, चाहे वो कोई गेम खेलना है, चाहे वो किसी किस्म की स्पोर्ट्स है, चाहे वो किसी तरह की कुकिंग है या कोई और चीज़ है, वो चीज़ जो आपके बचपन में कहीं ना कहीं आपको खुश करती रही है या कह लें कि आपको रिलीव्ड फील कराती रही है, वो चीज़ आपके बड़े होने तक ये पोटेंशियल रखती है कि वो आपको दोबारा से अच्छा फील कराएगी। चाहे वो एक मारियो की गेम खेलना है या कोई और चीज़ है जो आपके लिए जो आपको बेहतर और अच्छा महसूस करा सकती है। Okay, next move on to continuous learning. I think it is a very good strategy, and what I believe कि इसको पढ़ने के बाद what I there is a question come in my mind, or maybe वो आप लोगों के जहन में भी आए, but I will not tell you what question comes in my mind. I want you to ask me that question, and afterward we are going to brainstorm that. You can see over here, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि we have to read books, we have to explore and read or other things to improve our emotional intelligence, attend workshops, going in the different groups and forums that discuss emotional intelligence. आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसी चीज है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई से, बुक्स पढ़ने से, कहानियां पढ़ने से, मुख्तलिफ तरह के राइटर्स और ऑथर्स को पढ़ने से क्या हमारी इमोशनल एक्सपीरियंसेस बेहतर हो सकते हैं, एंड हाउ, व्हाट डू यू थिंक? आप में से कोई अगर इसके बारे में कहना कुछ चाहे या बताना चाहे या पूछना चाहे। लोग रीडिंग करते हैं, टीवी मूवीज भी देखते हैं, कई दफा ऐसी मूवीज भी आ रही होती है जिसके अंदर काफी जो है वो इनडायरेक्टली चीजें जो है वो सिखाई जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ ये डिपेंड करता है ना कि आपके अंदर विलिंगनेस टू चेंज कितना है, चेंज मैनेजमेंट कितनी ज्यादा है आपकी। कुछ लोग होते हैं जो रिजिडिटी पे होते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस, जैसे कि अगर हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे किस तरह से लेके जा रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले स्टेज के ऊपर जो है वो कहते हैं हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि आपके अंदर विलिंगनेस टू चेंज कितना है। किताबें आप 1000 पढ़ ले, लेकिन अगर आप चेंज होना नहीं चाहते तो ये वाली चीज एक है जो मैटर करती है कि आपके अंदर चेंज मैनेजमेंट की कैपेसिटी है कि नहीं है। Very nice, very good point you have raised. Anyone else wants to add something in that? क्या आपके ख्याल में कोई वर्कशॉप्स अटेंड करने से, किसी तरह की डिस्कशंस करने से क्या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाती है या हो सकती है? यस, अगर हम लोग इस तरह के वर्कशॉप्स में, जैसे अभी हम लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली यही सोच के कर रहे हैं कि वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो चेंज, विलिंगनेस टू लर्न है बंदे में, दैट्स व्हाई वी हियर। तो मुझे लगता है कि इट विल वर्क, क्योंकि बुक्स और स्टोरीज पढ़ने से क्या होगा कि आप और ज्यादा लोगों का पर्सपेक्टिव जानोगे ना, और व्हाट्स हैपनिंग, या जैसे एक बंदे की स्टोरी आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या फील किया उससे, तो यू गेट इनसाइट अबाउट इट, तो इट विल हेल्प यू, आई थिंक। आई थिंक यू आर वेरी राइट। जब हम कुछ बुक्स या आर्टिकल्स पढ़ते हैं या कोई स्टोरीज पढ़ते हैं, लेट्स सपोज कोई नॉवेल पढ़ते हैं, किसी कहानी को गो थ्रू करते हैं, so we it will improve our empathy as well. We are getting a different perspective of different author. जो एक शख्स है, जब भी वो एक कहानी बना रहा है या कोई आर्टिकल लिख रहा है, उसका अपना एक राइटिंग स्टाइल है, और उसके अंदर हम उस शख्स के अंदर लाइक एक्सेप्टेंस भी ला रहे होते हैं, अपने अंदर भी एक्सेप्टेंस ला रहे होते हैं. ओके, देयर इज अ kind of person in the society, so it will improve yourself as a you can say सोशल बीइंग. आपकी सोसाइटी के अंदर आप लोगों को, डिफरेंट तरह के, मुख्तलिफ तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना सीख रहे होते हैं. जस्ट लाइक जो है वो रुबात ने कहा कि हम मूवीज देखते हैं और उनसे भी हमें मिलता है. लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर की विलिंगनेस कितनी है टू गेट चेंज, बट डेफिनेटली it will improve your understanding and you can say different perspective जो है वो लेना आपको आता है इससे. Okay, now let's go to our very important, you can say, people in our society, and that is about children. Building emotional intelligence in children. How can we improve their understanding? Let's go through quickly. Open communication, like बच्चों के साथ बातचीत को हम लोग उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की मौका दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बात करने दें. ऑब्वियसली इसमें वही चीज़ आती है एक्टिव लिसनिंग की, कि बच्चों को ज़्यादा बोलने दें, उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आदत होनी चाहिए. लाइक एट टाइम्स वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी अभी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती इतनी अच्छी, वो ज़्यादा अच्छे जुमले नहीं बोलते बड़ों की तरह, but they are showing their emotions from their body language. They are showing their emotions with their you can say different acts. अपनी mischievous things से, वो जो अपनी शरारतें हैं या वो चीज़ें हैं, उनसे भी तो वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो हमें उस टाइम पर उनको एक लिवरेज साथ में ये भी देना चाहिए कि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इन दैट वे. नेक्स्ट इज रोल मॉडलिंग. अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम बहुत दफा जो है वो बड़े हो या बच्चे हों, हम बहुत दफा ना इमोशन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बैड इमोशंस, गुड इमोशंस, ठीक है. लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप बैड इमोशंस कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम सबके जहनों में आएगा गुस्सा एक बुरा इमोशन है, राइट. लेकिन गुस्सा जो है वो आपके साथ पैदा हुआ है. एंगर एक ऐसी चीज है ना, सेक्स और एंगर जो हर इंसान के साथ जो है वो डेवलप करते हैं. अगर हम इस पॉइंट पे इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं, एंगर इज नॉट बैड, उसका रिस्पॉन्स या आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि बुरा है या अच्छा है. तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप ना कि इमोशनल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करें, लेकिन उसके इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल रेगुलेशंस के ऊपर जो है वो काम करें. राइट. एज मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी. आपकी बात से मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ याद आई है कि आई वॉज टीचिंग, एज आई एम ऑल्सो अर्ली ईयर्स एजुकेटर,
मैं बिकन हाउस में पहले पढ़ा रही थी, और राइट नाउ आई एम आल्सो करंटली टीचिंग इन द सिटी स्कूल, एंड आई एम आल्सो अर्ली एजुकेटर फॉर लाइक अ वेरी यंग चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन सब। तो हमारे लाइक व्हाट वी डू इन दैट, कि हम बच्चों के साथ बैठते हैं, एंड वी सिट ऑन द मैट एंड वी टॉक अबाउट in the circle time. We talk about different matters like you can say bad touch, good touch, और bullying, और इस तरह की चीज़ों के बारे में जब हम शुरू में अपने सेशन में स्टार्ट करते हैं, so what we do is कि हम बच्चों को like मौका देते हैं कि they just have turn by turn they can communicate and tell what do they think about it, give their opinion. और उसके अंदर मैंने ये चीज इम्पोर्टेंटली ये देखी कि कुछ बच्चे जैसे दे आर नॉट वेरी you can say vocal or expressive नहीं होते, so but they have a very good ideas and they have a very good opinions about it. तो बच्चों के साथ उन चीज़ों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि we can tell them कि आपको अगर लेट्स सपोज हम एंगर की बात कर रहे हैं, तो एंगर को एक्सप्रेस करना in a positive way, or या you can say in a constructive way, that is very important. बच्चा जरूर अपने लेट्स सपोज आई आस्क अ चाइल्ड कि कभी अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन, तो आप उनको इमेजिन करवाएं, उनको सोचवाएं कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है, आपकी कोई चीज छीन लेता है, सो हाउ कैन यू रिएक्ट ऑन दैट। तो वो अपना पहला इमोशन बताएंगे कि हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, और या फिर वो उसके बारे में बताएंगे कि हाउ यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट। सो इट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव टॉक when we do in our school. तो I think it is very important to encourage a child कि वो अपना opinion जरूर दे, कि उनको जब फील होता है वो करते क्या है, और उनको also give them idea कि वो constructively कैसे कर सकते हैं उस चीज को। The next thing is role modeling. Teach emotional regulation through role modeling. अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये आती है कि पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल कर सकते हैं, बाय बीइंग खुद एज अ पेरेंट, अगर आप या एज अ टीचर या एज अ एडल्ट, इफ यू आर अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, तभी आप अपने बच्चे को भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि आपकी ही चीज उसके अंदर भी आ रही है। सो ओवर हियर यू कैन सी, इफ यू फील अपसेट, कामली एक्सप्लेन, उसको बच्चे को बताएं कि हाँ, आई एम फीलिंग अपसेट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, so I'm going to take a deep breath to calm down. और ये चीज मैंने अपने बच्चों के साथ भी, खुद के बच्चों के साथ भी ये की कि एट टाइम्स जब आई फील के मैं किसी चीज के लिए बहुत अपसेट हो रही हूँ, बट आई एम डूइंग राइट नाउ, और मैं अपने किसी वर्क से रिलेटेड कोई काम कर रही हूँ, सो आई टेल माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट अपसेट, अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है, सो बट आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ काम डाउन। तो ये चीज आपको अपने इमोशनल की सेल्फ रेगुलेशन भी इसमें आ जाती है, आप खुद भी कर रहे होते हो, और आप अपनी एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को भी रोल मॉडल कर रहे होते हो कि इट इज ओके इफ यू फील अपसेट समटाइम, बट यू नो यू हैव टू कंट्रोल दैट एज वेल। दैट टाइम आप उनके सामने जो है वो करें, डीप ब्रेथ लें, उनके सामने वो वाली सारी चीजें करें जो हमने, जैसे हमने पहले भी बात की कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए आप काउंटिंग टिल 10 करें, या अपने इमोशंस के अंदर माइंडफुल रिस्पॉन्सेस के बारे में हमने बात की, तो आप उनके सामने करेंगे जब ये रोल मॉडलिंग, दे विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट। ओके, नेक्स्ट इज द पॉइंट इज प्रेज एफर्ट एंड रेजिलियंस। यहाँ पर ये बात आती है कि बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़रूरत है, और इसकी वी ऑल नो एज अ पेरेंट, एज अ एडल्ट, हमें पता है कि बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर साथ ही साथ ये भी आती है चीज़ कि एट टाइम्स बच्चे किसी चीज़ में दे आर नॉट गुड इनफ, दे नीड टू इम्प्रूव दैट, बट वी हैव टू टेल देम कि आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल जो है ना, दैट व्हाट मैटर्स टू अस। आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, आपका रिजल्ट, आपका एंड सक्सेस हमारे लिए मैटर नहीं करता, आपकी जो है वो कह लें कि आपकी कंसिस्टेंसी व्हाट मैटर्स टू अस। Let's suppose a child is struggling to get first position in their class. If he or she is not able to get, still a parent or an adult or a teacher still have to appreciate them and give them appraisal on that, क्योंकि उसने वो struggle की। हम कहते हैं क्लास का बिलो एवरेज बच्चा है, और आपकी क्लास के टीचर ने उस बच्चे से कहा है कि मुझे लगता है बेटा आप नेक्स्ट टर्म के अंदर
आप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेंगे और वो नहीं ले पाता, ठीक है, नेक्स्ट टर्म के अंदर, तो टीचर इज गोइंग टू गिव अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कि बेटा मैंने आपके पेपर्स को जब मैं आई हैव गॉन थ्रू, आई कंप्लीटली फील दैट यू हैव वर्कड रियली हार्ड। तो ये जुमला कह देना एक टीचर के लिए उस बच्चे की जिंदगी को बहुत बड़ा एक कह लें कि रेजिलियंस का एक वजह दे देता है कि हाँ मैंने जिंदगी में स्ट्रगल की, मेरी स्ट्रगल कम थी या ज्यादा थी, लेकिन इट इज वर्थ वाइल। सो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे की जो चैलेंजेस हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको ओवरकम करने के लिए उसको साथ साथ अप्रिशिएट जरूर करें और उसके प्रोसेस को अप्रिशिएट जरूर करें। बट यहाँ पर सना, ऐसा नहीं लगता आपको कि बच्चे को सिखाने से पहले पेरेंट्स को या टीचर्स को खुद ये चीज जो है वो समझनी पड़ेगी? क्योंकि कई मर्तबा पेरेंट्स अपने खुद के कॉग्निटिव बाइसेस के अंदर जो है वो इतने ज्यादा जो है वो माइंड ट्रैप्ड हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना एग्रेशन अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं, बिना ये जाने कि अल्टीमेटली उनके बच्चों की पर्सनैलिटीज जो है वो बर्बाद हो जाएंगी उससे। बिल्कुल, लाइक ये चीज तो जो मैं अब इस वक्त कह रही हूँ कि एक टीचर या एक पेरेंट जो ये बात कर रहा है एक बच्चे से, जो मैंने एक मिसाल दी एक टेस्ट रिजल्ट्स की या इस तरह से, वो एक ऐसे ही पेरेंट या टीचर कर सकता है जो खुद इमोशनली इंटेलिजेंट है। इसीलिए हमने पहले बड़ों की बात की कि हमने कहा कि एक एडल्ट कैसे इंप्रूव कर सकता है, और देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ चिल्ड्रन कि हम अपने बच्चे में वो बिल्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट इफ ही और शी इज नॉट इन लिविंग इन अ एनवायरमेंट वेयर adults are not emotionally intelligent. So how can we expect a next generation to be intelligent if we are not? Right? ये ऐसे ही है कि अगर एक टीचर या एक पेरेंट खुद नहीं जानता किसी चीज के बारे में, तो वो कैसे अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो चीज सीख लेगा। तो यही चीज आती है नेक्स्ट। हम अब भी बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनके जो किसी भी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या किसी डिसऑर्डर या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं यहाँ ऐड ऑन करूंगी कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू add on the people which are going through some kind of physical disease or physical जो है वो कह लें कि illness, क्योंकि they are also in a vulnerable state। उनको भी coping strategies चाहिए होती हैं to maintain their emotional intelligence। जब एक शख्स हम देखते हैं कि फिजिकली बीमार है या मेंटली बीमार है, तो हम कहते हैं कि चिड़चिड़ा हुआ है या ये तो बात इससे करने में बहुत मुश्किल हुआ है। तो एज अ पर्सन हम जब उनके साथ डील कर रहे होते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हम उनके लिए अच्छा खाना लेकर जाते हैं या उनसे मिलने जा रहे हैं, तो हम उनके लिए कोई उनकी पसंद की चीज दे रहे हैं उनको, साथ ही साथ हमें उनके लिए ये भी चीजें फैसिलिटेटर बनना चाहिए कि वी आर ऑल्सो गिविंग देम दीज काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, जिससे वो अपनी इमोशनल वेलबींग को, इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन कर पाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसमें ऐसा ही है कि हम भी कभी ना कभी किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और हम भी किसी फिजिकल वेलबींग वाली स्टेट में नहीं होते, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। Work with a therapist or a counselor to process the trauma or manage mental health condition। ये तो लाइक हमें सबको पता है कि हमें अपने रूट कॉज के ऊपर सबसे पहले जाना चाहिए, राइट? हमें देखना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे कहीं ना कहीं ऐसी है जो हमें बॉदर कर रही है, और उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो वी हैव टू इनकरेज पीपल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट understanding the emotional dysregulation। Like it is basically giving a space to yourself, to your mental and to your you can say biological self। कि जब भी हम किसी लेट्स सपोज हम देखते हैं किसी खातून को कि वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में आ रही हैं आफ्टर डिलीवरी, तो हम उन्हें ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग उनको भी, खुद खातून को भी हो, और उनके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स जितने हैं उन लोगों को भी आइडिया हो कि वो किसी हार्मोनल जो है बैलेंस की स्टेट से गुजर रही हैं। सो गिव देम सम स्पेस, ठीक है? और लाइक हमारा जो ब्रेन है, मैगडिला है, इट इज हार्डर टू मैनेज द इमोशंस एट टाइम्स।
जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, सो इट नीड्स टाइम टू कम बैक टू दैट स्टेट. सो इट्स ओके, इट गिव्स देम. ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई चोट लगती है और आप उसको टाइम देते हो कि हाँ इसके ऊपर स्टैब आएगा, इसके ऊपर कुछ अरसे के बाद इस पर कवर आएगा, और फिर आप उस चोट को खुद हील होने देते हो. तो इट इज सेम वे कि आपको अपने इमोशंस को डिसरेगुलेट होते वक्त जो है उस शख्स को भी और अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए. यू हैव टू गिव कंफर्ट टू देम. ओके, द नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस फॉर हीलिंग. इसमें यही बात आ रही है, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रैक्टिस जर्नलिंग, माइंडफुलनेस की एप्स होती हैं, बहुत सारी आ गई हैं. वन ऑफ द लाइक वन ऑफ वेरी you can say very constructive app which I also use in my daily life is a great gratitude journaling. Or I'm using that app, and it helps me a lot to regulate my emotions, to make myself positive toward my environment, toward myself. तो लाइक आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी डिजिटल यू कैन से टूल्स और ऐसे डिजिटल रिसोर्सेज को ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए. रिसेंटली आई हैव केम अक्रॉस one of the web you can say साइट है जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को उसमें एंटर करते हैं, एंड यू विल गेट सम आयत और दुआ, कुरानिक दुआ related to that. So you can explore different apps related to mindfulness thinking, और जिसके अंदर आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में आसानी हो. तो बेशक अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर हम सबको पता है कि जो है वी फील कामनेस, जो है वो हमें अच्छा लगता है. सो यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ इन दैट वे, heal yourself in that way. Next we are going to talk about identify emotional triggers. ये हमने पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि कौन से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं. सो हमें अपने इमोशनल पैटर्न्स को जरूर नोट डाउन करना चाहिए, और वो तभी होता है जब हम जर्नलिंग कर रहे होते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज इमोशनल रेगुलेशन इन अ हेल्दी वे. ग्राउंडिंग टेक्निक आ रही है इसके अंदर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आ रही हैं, क्रिएट अ सेफ स्पेस. ग्राउंडिंग टेक्निक इज बेसिकली ओवरवेल्म्ड. ग्राउंडिंग टेक्निक लाइक 5 4 3 2 मेथड, इसके अंदर हम वही चीज आ रही है जिसके अंदर हम काउंटिंग कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू make ourselves calm down. Next, we are going to talk about rebuild motivations and resilience. Set small, achievable goals. Miss Sana, I'm sorry to interrupt you, but only 3 minutes are left, so we'll give another link so you can join it. All of you can join it. Okay, now continue. Okay. So I think it's just about 2 to 3 slides, and it's almost ending. Okay, now we are going to talk about reconnect with empathy. हमने पहले भी empathy के बारे में बात कर चुके हैं कि active listening होती है, और the one more thing which we can add in that कि helping others can rebuild a sense of connection and empathy. जब हम volunteer work करते हैं, हम अपनी community के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए मदद कर रहे होते हैं, it's the same कि जब आप दूसरों के दर्द में उनका साथ देते हैं या उनका करते हैं, तो आपको अपना दर्द कम महसूस होता है, और आपको अपने दर्द का एहसास होता है कि वो बहुत इतना सवेयर नहीं है जितना दूसरों के लिए मुश्किल है जिंदगी में. एंड शेयर योर स्टोरी, ज्वाइनिंग अ सपोर्ट ग्रुप. ठीक है, अब ये उन लोगों की बात हो रही है जो अपनी किसी जिंदगी के मुश्किल ट्रॉमा या डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं. सो व्हेन दे शेयर देयर स्टोरीज विद अदर्स इन अ सपोर्ट ग्रुप, सो इट डेफिनेटली हेल्प यू इन अ वे कि आपको सोशलाइजिंग करने से, अपनी जो है वो दिल हल्का करने से या अपना कैथारसिस करने से यू फील बेटर. So it will improve your, you can say, healing process. Next is improve social skill gradually. When a person is going through some kind of, you can say, stress, so उस बंदे से आप फौरी तौर पे ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कवर अप करे. So we have to go with a gradual process. उसमें ये चीज़ है कि their neighbors,
अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाए नहीं है, कैथारसिस करना उनके लिए जो है वो ज़रूर होना चाहिए। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विद द थेरेपिस्ट और ट्रस्टेड फ्रेंड्स। असर्टिव ट्रेनिंग की जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको एक ऐसे अंदाज से करें कि उसमें ना ही आप एग्रेसिव हो रहे हो और ना ही किसी किस्म के फियर के शिकार हो रहे हो। सो टेलिंग योर नीड्स, टेलिंग योर इमोशंस इन अ पॉजिटिव एंड अ फर्म वे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अलग जो है वो कह लें कि कंप्लीट डिस्कशन शुरू हो सकती है इसके ऊपर असर्टिव ट्रेनिंग क्या होती है। बट Thank you so much, Ms. Sana, for sharing your wisdom with us. It has been an honor to be able to participate in your webinar. I sincerely hope all of you have learned a lot and can apply emotional intelligence in your daily life and have fruitful relationships. Thank you.